Today I'm going to revise the topic of computer arithmetic, and in this topic we are also going to cover the floating point numbers, how floating point numbers are stored. So these are all introductory part because it is also covered in next semesters, but this introductory part will help you a lot. Okay, so let me start. So here you can see that arithmetic and logical units are there inside the computer. Okay, in this unit, it does calculation. Everything else in the computer is there to service this unit. Okay, so this is very important unit. Whatever you want to do, because each and everything, whatever picture, whatever gaming, whatever things going on, it is based on addition, subtraction, multiplication, and division of particular color or particular thing. Okay, so that's why each and everything is performed, and everything else in this computer is there is service. It will provide service to this particular unit. It handles integer, it handles floating point numbers, yeah, or real numbers, maybe separate floating point unit like math coprocessors are also there. Okay, so this was also there in previous generation computers, and there may be on chip separate floating point unit like 486DX plus processor. Okay, so this is on chip kind of processor. So what are the arithmetic and logical unit and its input and its output? So in arithmetic and logical unit, whenever we are taking this name, it will give you some confusion, or it will give you some specific name. But if you think about arithmetic and logical unit, it is simple thing: plus, minus, asterisk, divide. Okay, so let me try to annotate this also. Uh, So what is inside that? Inside that, arithmetic means, what is the meaning of arithmetic? Plus, minus, asterisk, divide, modulus operator. Logic means and, or, not, XOR. Okay, and this whole thing is unit. Similarly, registers. These registers are used to these. This control unit is heart of the system. Okay, this heart is very important, and this will regulate the pulses. Okay, inside hearts pulses are there. So this is the control unit, and registers are to calculate or to temporarily store data. Okay, and then what will be the output? Flags. These flags are nothing like, in our case, what are the things like minus is the result. If we add two positive number, it will give you minus as a result. So this minus indicates that overflow is there. So overflow flag will be glowing. Then if one minus is coming, it means negative flag is going, and so on. And registers, output can be uh, taken back into the register. So here in output register, actually register is one linear array of storage. Okay, so in this storage, the temporary result will be accumulated. So this is our arithmetic and logical unit. Integer representation, only 0 1, so this is already there. Only we have zeros and 1 to represent. Okay, inside that computer. Positive number stored in binary like this. No minus sign is there, no decimal point is also there in integer. Sometimes sign magnitude, and sometimes 2's complement. But always remember that this is very important system, and this is not good system. Okay, if we are talking about sign magnitude, so what is the meaning of sign magnitude? Suppose you want to write 9, so 9 can be written as this. Okay, and if you want to write positive 9, this is like that, and if you want to negative 9, then this is also this. So this bit is for sign. Okay, and magnitude is same. Magnitude is same, so this is known as magnitude, sign magnitude number. Okay,
but whenever you are adding two number, whenever subtracting two number, it will not give you answer in sign magnitude data. What is written? Leftmost bit. Leftmost bit is sign bit. 0 means positive and 1 means negative. Okay, then सर plus 18. Yes, जब आपने 1s कॉम्प्लीमेंट करवाया तो तब सर 0 आया था, तब आपने कहा था कि 0 मीन नेगेटिव, फिर हमें मुझे 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना था। तो नहीं नहीं, आप एक बार 1s कॉम्प्लीमेंट फिर से पढ़ेंगे, वो वीडियो है, आप उसमें समझिए कहा मैंने ऐसा कहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जाइए और मुझे बताइएगा, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा होगा। ओके, वो कॉम्प्लीमेंट होता है कि जब आप 1 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। फाइन, तो ये 1s कॉम्प्लीमेंट की यदि हम बात करें, ये 1 1 0 और माइनस सपोज हमको दिया हुआ है 5 माइनस 6। ओके, तब आप क्या करते हैं, या 6 माइनस 5 दिया हुआ है, या ये क्या नंबर लिखा, 5 माइनस 6 ना, तो इसको मिटा के मुझे 5 लिखना पड़ेगा, ये इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद 0 मतलब नेगेटिव आता है, वो कब आता है, जब हम कैरी बचाते हैं। ये हमने लिखा है, हमारा फॉर्मेट है, कल जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था ना, इसमें लेफ्ट मोस्ट बिट इज स्टोर फॉर साइन। ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस 101 इज 5 एंड 110 इज 6। ओके, दिस इज नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 001 लिखा और इसके बाद 101 लिखा, ऐसे करके ऐड किया, तो आप इस 0 की बात कर रहे हैं। ये यदि कैरी नहीं बचता, दिस इज कैरी बिट, रिमेंबर this carry is, if it is 1 then it is positive. Okay, carry, it is not sign bit and here it is sign bit. So मतलब आपको दोनों बिट के बीच में समझ अंतर गया। पता होना चाहिए। ओके, देन ओके यहाँ पर यदि पॉजिटिव 18 लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और नेगेटिव 18 लिख रहे हैं तो इस तरह से, कि इस जगह पे वही सेम चीजें लिखी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर आंसर ये आ रहा है। जबकि 2s कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, 2s कॉम्प्लीमेंट में यदि माइनस 18 आपको लिखना है, माइनस 18 आप कैसे लिखोगे, माइनस 18 लिखने के लिए आपके पास नंबर है 0 0 1 1 0 1 1 0 1। ओके, फिर आप इसमें 1 ऐड करते हो, 1 ऐड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आता है, 1 1 0 एंड दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज 1 1 1 0 1 1। और हाँ, जब आप साइन नंबर लिखते हैं तो ये लेफ्ट मोस्ट बिट को आप छोड़ देते हैं, लेफ्ट मोस्ट बिट आपका 1 ही रहेगा, तो ये यहाँ पर ये 1 आ गया, क्योंकि आप साइन नंबर यहाँ पर साइन मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट किया ना, एक्चुअल में आपका नंबर ये है और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है साइन मैग्नीट्यूड में। तो मैं आपको कंफ्यूज ना करते हुए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट में, और फिर तो यदि आपको माइनस 18 लिखना है, क्योंकि वहां तो माइनस 18 गलत तरीके से लिखा हुआ है, वो साइन मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड आपका सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है। मैग्नीट्यूड मीन्स जो आपका जो आपकी मात्रा है, क्वांटिटी है, वो सेम है, केवल आपका साइन भर चेंज हुआ है। लेकिन 2s कॉम्प्लीमेंट इज नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पर 3 टाइम्स 0 है तो आप 3 टाइम्स 1 लिखेंगे, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, और इसके बाद फिर 1 लिखा है तो 0, फिर डबल 1, फिर 0 1, और इसमें आप क्या ऐड करेंगे 1, तो इट विल बिकम 2s कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो 2s कॉम्प्लीमेंट में है तो लेफ्ट मोस्ट बिट 1, लेकिन आपका जो आंसर है वो अलग हो जाएगा, 1 1 1। और यदि इसको मैं कैलकुलेट करके फटाफट बता दूं क्या आंसर आएगा, तो दिस इज योर 14, ओके, एंड दिस इज 0, दिस इज 0 1 2 3 4 5, तो 32 64 एंड दिस इज माइनस 128। ओके, अब आप इन सबको ऐड करो और देख लो आंसर माइनस 18 आता है कि नहीं। ये हमने प्रोसेस की माइनस 18 बनाने की, है ना। यस, आया क्या आंसर, यस सर। आ गया। So this will give you minus 18. So how this number is very very natural. Okay, this number is very very natural. That's why 2s complement is there. In case of sign magnitude data needs to consider both sign and magnitude in arithmetic and two representation of 0, plus 0 and minus 0. 2s complement में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हम लिखते हैं, है ना। तो ये वैल्यू बॉक्स है, सबसे लास्ट बिट पे आपको ध्यान रखना है
कि सबसे लास्ट बिट हमेशा नेगेटिव रहेगी, बाकी पूरी पॉजिटिव। पावर सेम चल रही है, दिस इज 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, but this is minus 2 to the power 7. So it will automatically means this is magical mathematics. Okay, so it shows the representation of data. Suppose this is written, and what is the value of this? 1 1 1 1 4 times 1 and 2 times 1 and 0 1. So what is the value of this? So value of this is कितना निकाला इन्होंने? -3. ओके, सो -3 कैसे निकाला है? -3 यहाँ पर सीधे सीधे आपने वैल्यू को पूरा ऐड किया, ऐड करने के बाद ये -3 आ जाएगा। देन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास एक ही रिप्रेजेंटेशन है जीरो का, अरिथमेटिक वर्क्स इजीली, ओके, एंड negation is fairly easy. Okay, suppose this 3 is given, so what is the 3's नेगेटिव नंबर? -3 में आप क्या करेंगे? -3 के लिए इन्होंने यही प्रोसेस बनाई है कि पहले आप बुलियन कॉम्प्लीमेंट करो, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आएगा? जितने टाइम्स 0 उतने टाइम्स 1, और जितने टाइम्स 1 है उतने टाइम्स 0 यहाँ पर हमने करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन पे लिख दिया। इस पे हमने 1 ऐड किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस विल गिव यू -3। नेगेशन -18 +18 मैंने आपको करके बता दिया है, ये पूरे केसेस आपको बताए हैं। और नेगेशन का स्पेशल केस है जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जीरो का कॉम्प्लीमेंट हमेशा 0 आता है। ठीक है, कैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ये जीरो का कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल दिया है ना, जीरो का कॉम्प्लीमेंट निकाला, और जीरो का किसी ने कहा कि नहीं नेगेटिव 0 होता है, ऐसा होता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली 8 बिट नंबर सिस्टम है, तो 8 बिट में हमने 8 टाइम्स 1 लिख दिया, और इसमें से लेफ्ट मोस्ट बिट साइन के लिए यूज हो जाती है। जब आप इस पे +1 करते हो तो पूरा की पूरा ऐड होने के बाद सारा 0 में कन्वर्ट होता है, और ये जो एक्स्ट्रा 1 है वो यदि डिस्कार्ड भी करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। सो -0 इक्वल्स टू +0, ये ट्रू है। देन स्पेशल केस 2 -128। ओके, यदि ये 128 लिखा हुआ है, नहीं इसको छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज -128, और यदि आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो भी -128 ही आएगा। -128 का कॉम्प्लीमेंट होता है 127, और इसमें आपने 1 ऐड किया तो ये 128 देता है। ठीक है, ये आप करके देख लेना, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब रेंज ऑफ नंबर्स के लिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, मैंने भी आप लोगों को बताया है कि क्योंकि हम जब रेंज निकालते हैं 8 बिट की बात करें तो 8 बिट में क्या होता है? 8 बिट में हमारे पास 7 और 1 ऐसा हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है। अब ये 1 जो है ये साइन के लिए है, और बाकी 7 बिट है रिप्रेजेंटेशन के लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो विथ 7 बिट वी विल स्टार्ट 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। यहाँ से यहाँ तक आप लिखोगे तो 0 1 1 1 और 1 1 1 1 आएगा, तो दिस इज 0 एंड दिस इज 127। ओके, इसके बाद जैसे ही आपने ये 1, इसके बाद अगला नंबर जो आपने लिखा तो इट इज -128, और इसके बाद जो सबसे लास्ट नंबर आएगा 1111 और 1111, दिस इज योर -1। तो ये जो रेंज बनती है वो -128 से लेकर 0 से लेकर +127 तक की बनती है। इसलिए इस रेंज को जब हम पावर्स में कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 2 to the power 7 से लेकर 0 एंड 2 to the power 7 -1 तक, यदि आपका 8 बिट का नंबर है। ठीक है, 8 बिट के केस में। यदि आपके पास 16 बिट है, 16 बिट में क्या हो जाएगा? -2 to the power 15 से लेकर 0 से लेकर 2 to the power 15 -1। Why this -1 is coming? Because of this 0. In negative number up to -1, -0, there is no concept of -1. That's why this is the range. So whenever it is asked that what will be the range of integer data type in 4 byte, if suppose size of integer data type is 4, तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा कि यदि ट्रेडिशनल कंपाइलर की बात करें तो ट्रेडिशनल कंपाइलर में इंटीजर 16 बिट का होता है, मॉडर्न कंपाइलर में इंटीजर 32 बिट का होता है। यदि हम 16 बिट का यूज करते हैं डेटा, तो जो रेंज आएगी वो -15 से लेकर 0 से लेकर
2 to the power 15 minus 1 तक आएगी। सिमिलरली यदि 32 बिट का डेटा है तो 2 to the power minus 31 से लेकर 0 से लेकर 2 to the power 31 sorry, this is minus, this is not minus, this is plus, sorry, yes, here this minus will come, okay, and here also this minus will come, then 2 to the power 31 minus 1. So this is the way you can calculate the range, okay. कन्वर्शन बिटवीन लेंथ, यदि आपको बोला गया, यदि आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आपको 18 को 16 बिट सिस्टम में लिखना है और 8 बिट सिस्टम में लिखना है, ठीक है, तो आप तो बहुत आसानी से लिख दोगे 0 0 कितने बार 0, जितने भी बार 0 आ रहा है ना, और 0 0 0 1 0 0। एक काम करते हैं, 18 तो आपको पता नहीं है तो मैं आपको 1 का निकाल के बताता हूँ। 1 को 16 बिट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0 0 0 और कितने बार 0 रहेंगे, 15 बार, 15 टाइम्स 0 और इसके बाद ये 1। और यदि आपको -1 को रिप्रेजेंट करना है तो -1 कैसे रिप्रेजेंट होगा, -1 रिप्रेजेंट होगा 16 टाइम्स 1, दिस इज 16 टाइम्स 1। यदि आप 16 बिट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यदि आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट। आज मैं बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए, आज मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको देखिए और इसके बाद, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने करवाई है और इसको आप देखने के बाद जैसे आपको जो भी डाउट आता है वो आप तुरंत मुझे कल की क्लास में या जब भी क्लास होगी तब पूछ लेंगे, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने बता दिया है कि एक आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट मेथड होती है और एक होती है 1s कॉम्प्लीमेंट होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट होता है, एक नॉर्मल बाइनरी एडिशन होता है, एक मॉनिटर साइन बिट और फॉर ओवरफ्लो, है ना। तो ये मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को एडिशन केवल 1s और 2s से परफॉर्म करना है। एक्चुअली एडिशन तो नॉर्मल है, एडिशन तो नॉर्मल है, ये सब्ट्रैक्शन जो आपको परफॉर्म करना है, ये सब्ट्रैक्शन आपको, और सब्ट्रैक्शन भी नहीं, जब भी सपोज -9 -6 लिखा है तो ये क्या है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है? एनीवन? एडिशन। एडिशन है, तो इसलिए हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन बोल देंगे या अरिथमेटिक बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब आप बिना 1s या 2s के काम नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई we cannot distinguish that whether one sign is sufficient to identify. So that's why this term is written in terms of addition. We will perform addition all the time, okay. It may be 1s complement addition or 2s complement addition. Now come to don't go on this addition and subtraction. Multiplication is also I am skipping from here. Yes, this multiplication also I am going to skip here because it is higher concept, so I am not taking for you, okay. Then come to floating point. This is very important thing. So just try to understand whenever you are writing any number. So this is like in scientific notation 6.12 into 10 to the power minus 18, okay. So this is your writing way of writing. So here and plus minus, okay. So sine, exponent and mantissa. Mantissa, okay, yes. So what do you mean by all these things, okay? What do you mean by all these things? So this is whenever you are writing, you are interested to write this number. So this number can be written like sign bit is, suppose it is negative number, okay. Suppose this is negative number, so just write negative here. And exponent is what? It is in scientific notation or not? Yes, it is in scientific notation. In scientific notation only one place is there, okay, and this one place will be written. So this is written there. And now
See, there is a very little problem, but I will show you. Let me, in case of decimal number, it will become 0.6. Okay, and uh, this is 17. So let me write that. Let me convert this into scientific notation. So 0.612. Why I am saying this, I will explain you. Into 10 to the power minus 17. Okay, so this is the thing. Bias exponent is 17. This is minus 17. Okay, and then significant is your 612. Okay, कहीं भी हमने डेसिमल पॉइंट नहीं लगाया. फ्लोटिंग पॉइंट एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर सिस्टम है. कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो बार साइन लिखते हैं. जैसे -6.12 इंटू 10 टू द पावर 9. एक बार साइन यहाँ आया और एक बार साइन यहाँ आया. अब ये दोनों साइन के मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ द साइन? सो दिस साइन इज नॉट एक्चुअल साइन. ओके, दिस इज साइन. दिस साइन डिनोट्स डिनोमिनेटर. ओके, while this sign is the actual sign. So suppose if any notation is written like minus 36 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब क्या है? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये माइनस रखा हुआ है ना, और ये माइनस के बाद मैंने माइनस लिखा है. जस्ट एक एग्जांपल है. बाइनरी में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर होता है, पर ये एक एग्जांपल है और आपको याद रखना है, और इस पे बहुत ज्यादा अभी फोकस नहीं करना है. जैसे आपका टाइम आएगा आपको समझ में जाएगा. सो ये लिखा हुआ है माइनस 0.123456 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6. किसी को इसमें कोई डाउट है? यस, एनीवन? सर दोबारा बता दो. दोबारा बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं. देखिए, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करवाते हो ना, उसका एक तरीका है. मैं केवल डेसिमल का एग्जांपल बता रहा हूँ. एक्चुअल में है तो बाइनरी के लिए ही, लेकिन फिर भी मैं डेसिमल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है. SEM, SEM आपको याद रखना है ना. SEM याद रखना. SEM is your semester, so you can easily understand what is SEM. Fine. So suppose आपको पूछा गया कि ये कितना लिखा हुआ है. सिर्फ डेसिमल की बात कर रहे हैं हम. सपोज आपसे पूछा गया है कि ये कितना लिखा हुआ है ना, और यहाँ पर लिखा है माइनस, और हमारे पास अभी सब टाइप करने के फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये एक्सपोनेंट हम छोटा सा रखते हैं क्योंकि किसी की भी पावर बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है. तो हमने यहाँ पर रखा है -69 और यहाँ रखा है 129864321. ओके, अब आप इसको जब लिखोगे, ये हमने डेटा में रिप्रेजेंट किया, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में रिप्रेजेंट किया. अब इसको आप लिखोगे तो ये है साइन, ये है एक्सपोनेंट और ये है मैंटीसा. ओके, सो जब आप इसको लिखोगे तो साइन हो गया. साइन मतलब एक्चुअल साइन. अब इसके बाद मैंटीसा में जो लिखा हुआ है उस पे आप लगाओगे 0.129. ओके, 129864321 डबल प्रिसीजन का नंबर हमने ले लिया है, और फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट मतलब 10 टू द पावर -69. तो ये हमारा आंसर होगा. गॉट इट? यस सर. ओके. अब यहाँ एक छोटी सी चीज है, छोटा सा प्रॉब्लम. यस, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया, हाँ, या तो सर बोल के तुरंत बोल दिया करो या फिर रुका मत करो. ठीक है? यस, नहीं बोलना है तो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना. ये क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है. मैं यस बोलता हूँ, आप रुक जाते हो, आपको समझ में तुरंत आ जाता है. ओके, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है.
आप प्रॉब्लम लिखो पेपर में और तुरंत पूछो। फाइन। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यहाँ पर साइन है। अब हमने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है। बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए बायस्ड एक्सपोनेंट है। बायस एक्सपोनेंट एक ऐसा एक्सपोनेंट है जिसमें हर एक चीज पॉजिटिव के टर्म्स में लिखी हुई है। हर एक चीज को हमने पॉजिटिव के टर्म्स में लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ बायस एक्सपोनेंट होता है और कुछ नहीं। और ये साइन होता है, साइन के अलावा सिग्निफिकेंट, यानी जो भी आप नंबर है, जैसे मैं एक एग्जांपल, ये नीचे वाला एग्जांपल सही है, मैं आपको सही एग्जांपल नहीं केवल एग्जांपल समझा रहा हूँ। सपोज एक नंबर लिखा हुआ है, साइन के लिए आप क्या यूज करते हैं, 0 और 1, है ना। तो ये नंबर लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में, यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 111, ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1011। तो ये क्या लिखा है, जस्ट दिस इज फॉर एग्जांपल ओनली, ओके। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ये लिखा हुआ है 0.10111 multiplied by 2 to the power, okay, so this is 2 to the power, 2 to the power क्या लिखा हुआ है, 2 to the power, और ये 1 है तो 1 का ये माइनस हो गया, माइनस, एंड 2 to the power 111 इन बाइनरी, दिस इज 2 to the power 111, और ये जो है सपोज इसके आगे माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन, इस तरह से ये एक्सपैंड करेंगे। इसकी एक्सपैंड करने की मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोग, थोड़ा जब आप अरिथमेटिक का एग्जांपल कर लेंगे। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट एग्जांपल है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में आपके पास दो तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। IEEE 754 स्टैंडर्ड जो है वो 32 बिट के लिए और 64 बिट के लिए स्टैंडर्ड बनाया है। इसमें आपको जो एक्सपोनेंट की बिट्स है, ठीक है, मैं यदि SEM लिखूं तो SEM में 1 बिट यहाँ पर कंज्यूम हो गई है, SEM और M, ठीक है, और यदि ये 32 बिट का है तो इसमें 8 बिट का एक्सपोनेंट रहेगा, 8 बिट का एक्सपोनेंट रहेगा, 8 + 1 9, 32 - 9 हाउ मच, 23 सर। 23। तो 1823 आपको याद रखना है। दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ IEEE स्टैंडर्ड। IEEE आपने मेरे नाम के आगे और कई जगह देखा होगा, तो ये IEEE है। IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो स्टैंडर्ड बनाती है। स्टैंडर्ड इसलिए बनाए गए हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है इसी को फॉलो करे। फाइन, सो दिस इज आवर्स एंड दिस इज नंबर ऑफ बिट्स, ओके, 1 बिट, इट इज नॉट माइनस, सो 1 बिट 23 बिट, फाइन, एंड 8 बिट। सिमिलरली यदि आप 64 बिट की बात करते हैं तो 64 बिट में s इक्वल्स टू 1 और exponent equals to 11, 1 + 1 11 + 1 12, and this is 64 minus 12, that is equals to 2 and 4, no 5, 52 बिट का इसमें होता है एक्सपोनेंट। क्लियर, बस इतना ही मुझे समझाना था आज की क्लास में, और बहुत ऐसा वो नहीं, केवल मैंने रिवाइज किया है ना। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस तरह से आप फॉर्मेट बनाएंगे, इस तरह से फॉर्मेट बनाएंगे, और ये फॉर्मेट आपको वहां पर लिखना होगा। ये आपके सिलेबस में एक छोटा सा पॉइंट है कि व्हाट, तो आप लोगों के लिए अभी से एक असाइनमेंट है, एंड दिस असाइनमेंट इज नॉट graded, okay, just write explain floating point number in detail, okay। अब ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन IEEE 754 फॉर्मेट, ओके। सो अप टू दिस पॉइंट, और जो जो चीजें मैंने स्किप की है वो डैम श्योर आपको 3rd या 4th सेमेस्टर में आएगी, लेकिन ये जो चीजें हैं जो आपको बतानी है वो इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है। आज मेरी क्लास का टारगेट है, जो टारगेट था वो यही था कि आप लोगों को IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट बता दूं।
अब आप लोगों को डेसिमल के इक्विवेलेंट भी मैंने बता दिया है कि इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है। तो इन सारी चीजों का मतलब यही होता है कि यहाँ पर आप साइन लिखते हो, यहाँ पर एक्सपोनेंट लिखते हो, एक्सपोनेंट मतलब 10 की पावर में लिखते हो, और मैंटीसा मतलब होता है, मैंटीसा या फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन और मैंटीसा जो एक्चुअल वैल्यू है। तो ये फिर से एक बार एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपको लिखना है 0.00000064, अब आप इसको कैसे लिख पाएंगे? सो दिस इज 0.64 into 10 to the power how much? -7। Yes, sir. ओके, अब आप जब इसको SEM रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बिकॉज दिस इज पॉजिटिव नंबर, अब हमने डेसिमल में भी बोला कि नहीं 0 और 1 से ही हम पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमने 0 और 1 से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पर? -7 है, और मैंटीसा यानी कि फ्रैक्शन क्या है आपका? 64, और इसके बाद खूब सारे जीरो है, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट आपको? No, sir. फाइन। नो सर। तो आपको ये 754 के बारे में डिटेल लिखनी है। आज शाम तक या कल तक मैं आप लोगों को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल के पूरे असाइनमेंट दूंगा। उन असाइनमेंट्स को पढ़ना है, अपने हिसाब से सॉल्व करना है, पूछना है नहीं पूछना है। अब मैं आपको बस ये लास्ट 5 मिनट में बता दूं, ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। पर इसके एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बायस वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बायस वैल्यू कहीं पर लिखी नहीं है, और ये जब टाइम आएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये टोटल इस तरह से कंप्यूटर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक परफॉर्म होती है, ठीक है। सो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है। सो दिस इज actually this is spelling chapter 9, and because I want to show you this thing, so that's why I had written। अब आपको देखना ये है कि बाइनरी में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ बाइनरी की बात कर रहा हूँ। आपको नॉर्मल सब्ट्रैक्शन बोला गया है, सब्ट्रैक्शन बोला गया है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। यदि आपको बोला है फॉर 8-बिट नंबर सिस्टम, फॉर 8-बिट नंबर सिस्टम, तब आप क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई नंबर इन्होंने दिया है सब्ट्रैक्ट करने के लिए 11001, ओके, एंड -10111, ये नंबर दिया हुआ है। तो जब आपको 8-बिट सिस्टम बोलेगा तो आपको करना ये है कि इसको कन्वर्ट कर लेना 000, जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको 8-बिट के टर्म्स में 11001 ये कन्वर्ट कर लेना है। अब ये माइनस करना है, ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है, ये माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। अब आपको इसको क्या करना है? इसके पॉजिटिव इक्विवेलेंट लिखना है। पॉजिटिव इक्विवेलेंट क्या है? 000 है, 10111 है। फिर आपको इसका क्या करना है? 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यदि आपसे 1s में सॉल्व करने को बोला तो 1s निकालना है, 2s में बोला तो 2s निकालना है। तो ये आ जाएगा 0001011, ऑटोमेटिकली ये 1s में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप इसमें 1 ऐड करते हैं तो 100101111, ये आपका 2s में आ गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे, तो जब आपको 8-बिट स्पेसिफिकली बोले तो आपको पूरा नंबर 8-बिट में कन्वर्ट करना है, और उसमें आपको ये बताना होगा कि ये जो बिट है, ये वैसे साइन की बताने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाला तो 2 टू द पावर माइनस क्या होता है, जो भी नंबर होता है n-1, फाइन। तो ये आप लोगों को लिख देना। कोई डाउट है? अब No, sir. ओके, तो आज की क्लास थोड़ी सी यूनिडायरेक्शनल है, तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ इसके लिए। लेकिन क्या है कि आज थोड़ा ऐसा रीजन था। अब एक बार ये खत्म हो गया, आपको डाउट आने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं बाकी की चीजें सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसलिए आप लोगों को कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ चीजें समझ में आ रही होगी, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, और ये आराम से हो जाएगा।
हेलो सर। यस, सर आप जो रिकॉर्डिंग डालते हो ना सर, इसको मैं डाउनलोड नहीं कर। आवाज थोड़ा सा तेज करो। सर आप जो रिकॉर्डिंग डालते हो ना सर, उसको मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा। हाँ, ये यूट्यूब में डलती है रिकॉर्डिंग, है ना? नहीं सर, MS टीम पे डाउनलोड नहीं। क्या चीज? ये जो रिकॉर्डिंग आप डालते हो ना, हाँ, MS टीम पे भी तो होती होगी ना सर? ये MS टीम पे भी होती है, बिल्कुल निकलती है, तो सर लेकिन आप इसके शायद ए सेक्शन के मेंबर नहीं होंगे। ये क्लास में बाय डिफॉल्ट ए सेक्शन की आईडी से ले रहा हूँ, है ना? सर ए सेक्शन का ही हूँ सर मैं। हाँ, तो ए सेक्शन वालों को तो मिल जाता है, वहाँ पोस्ट के अंदर डाउनलोडेड है, जहाँ से आप ज्वाइन करते हो वहीं पर मिलती है रिकॉर्डिंग। सर ठीक है, मैं तो बस मैं एक बार थैंक यू बोल लूँ, फिर आप क्वेश्चन पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच for this lecture, and if you have any doubt, because this is very faster lecture, I am expecting that, I am also thinking that this is very fast lecture, but just solve this problem. Okay, and after solving some problems, if you have any doubt, you can ask. Thank you very much.